معزز ناظرین، میں مشتاق احمد وانی محبت اور نیک دعاؤں کے ساتھ تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر آپ کے سامنے آج ایک نئے مہمان کو روبرو کرنے جا رہا ہوں، اور ان کا تعلق ڈھاکہ بنگلہ دیش سے ہے، اور ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام ربانی صاحب۔ یہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے پروفیسر ہیں، اور انہیں علامہ اقبال کی شاعری، اردو افسانہ، مرزا غالب کے خطوط اور بنگلہ دیش میں اردو ادب کی صورتحال، اس پر جو ہے ان کو خصوصی دستخط ان تمام موضوعات پر، اور ان کی تعلیمی قابلیت، یہ ایم اے اردو ہیں، ایم فل ہیں، اردو میں پی ایچ ڈی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہم تمام اردو والوں کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مفتی بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ انہوں نے عالمیت اور مفتی کا کورس بھی کیا ہوا ہے۔ میں ربانی صاحب آپ کو آج فیس بک لائیو پروگرام تحریک بقائے اردو کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان ہوں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کو ہمارے تمام ناظرین آپ کو دیکھیں گے اور آپ سے محظوظ ہوں گے، آپ کی دانشوری کا فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ سے میرا پہلا، ہمارے جو فارمیٹ کے مطابق میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو متعارف کروائیے کہ آپ کا تعلیمی اور آپ کا علمی سفر کہاں سے شروع ہوا، اور اردو کی طرف کس طرح سے آپ جو ہے اردو کی طرف کس طرح مائل ہوئے، اور اردو کے ساتھ آپ کا لگاؤ کس طرح بڑھا۔ کیا خاندانی طور پر آپ کے گھر میں اردو جو ہے زبان باضابطہ آپ کی مادری زبان رہی ہے یا نہیں رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ متعارف کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقائے اردو کے ناظرین، میں پہلے ہی کہنا چاہتا ہوں، میں اردو زبان کا نہیں ہوں، میری مادری زبان بانگلہ ہے، میں اردو کہہ بھی نہیں سکتا ہوں۔ پھر بھی یہاں موقع مل گیا پروفیسر ہونے کے لیے، تو پروفیسر ہوں، لیکن نوکری کی وجہ سے، کیونکہ میں اس میں نوکری کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں وہی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، تم ہر ایک ذمہ دار ہو اور تم کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں چونکہ اردو کے پروفیسر ہوں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اردو کو پسند کرنے کے لیے، اردو کو پڑھنے کے لیے، اردو کو ترقی دینے کے لیے کچھ کوشش کر رہا ہوں۔ اور میں اردو ڈھاکہ نام سے ایک فیس بک پیج بھی، فیس بک آئی ڈی بھی چلاتا ہوں۔ اس میں اردو کے بارے میں جو کچھ معلومات ہے مجھے معلوم ہوتی وہ پیش کرتا ہوں۔ میں پہلے ہی معذرت پیش کر رہا ہوں کہ کیونکہ میری مادری زبان اردو نہیں ہے، اس لیے بہت سارے غلطیاں میرے جملوں میں آ جائے گی، پھر بھی اس کو معاف کر دینا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اردو کے محبت میں کچھ پیش کرنے کے لیے۔ پہلے تو میرے تعارف بتانا تھا، وہ میں ایک ایسا فیملی میں جنم لیا جہاں وہ سب کے سب بانگلہ کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں صرف 3 لاکھ آدمی ہیں جو اردو کہتے ہیں، جن لوگوں کی مادری زبان اردو ہے۔ باقی جو 17-18 کروڑ آدمی ہیں، سب لوگوں کے مادری زبان بانگلہ ہے، اور ہمہ وقت وہ بانگلہ ہی سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو میری پیدائش ہوئی وہاں بانگلہ ماحول ہے، بانگلہ ہم کہتے تھے۔ اس طرح کہ میں آپ جانتے ہیں شاید بنگلہ دیش میں 1952 کے بعد اردو کے خلاف تحریک ہوئی تھی، تو وہ ہم تو کہہ رہا تھا لسانی تحریک، بنگلہ کے لیے ہم تحریک کیا تھا، لیکن وہ تھا اردو کے خلاف۔
तो उर्दू के खिलाफ होने के वजह से हमारे जहन में, हमारे दिलों में उर्दू के खिलाफ वो बात बैठ गई थी। फिर जब मदरसा में मैं दाखिला लिया, वहाँ पढ़ना शुरू किया, तो उर्दू तो सीख लिया, लेकिन एक वक्त आया जब उर्दू या अरबी में दाखिला इम्तिहान देना पड़ा। तो मैं सोचा कि उर्दू से नहीं लिखूंगा, मैं अरबी से लिखूंगा, क्योंकि उर्दू के खिलाफ मेरे जहन बनी हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ एक बात है बांग्ला में, इसका मतलब है कि जिसको तुम नफरत करते हो उसी में तुमको गिरना पड़ेगा। तो वो मुझे फिर जब दाखिल इम्तिहान दिया, मैंने एसएससी एचएससी, इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मौका मिला, तो मुझे सब्जेक्ट मिला है उर्दू। तो उर्दू तो मिल गया, तो इसके अलावा पढ़ने की कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो मैं सोचा कि ठीक है उर्दू पढ़ लो। तो उर्दू पढ़ने के बाद जब पढ़ना शुरू किया तो मैं सोचा जो नफरत थी पहले उसको छोड़ दो, तो उर्दू को अपनाना शुरू किया, उर्दू को मोहब्बत करना शुरू किया, उर्दू सीखना। अब मेरे एक आदत है, जो मैं काम करता हूँ उसको दिल से करता हूँ। फिर जब यहाँ प्रोफेसर होने का मौका मिला, लेक्चर पहले लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, तो मैं सोचा कि क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है उर्दू के बारे में, तो मैं उर्दू को पसंद करूँ और उर्दू की इशाअत में मेरे जो जिम्मेदारी अदा करना है उसको करूँ। और मैं बांग्लादेश में पढ़ा। फिर आपको शायद आप लोग खुश हो गए क्योंकि अक्सर इंडिया के हैं, पाकिस्तान के भी कुछ हैं। मैं इंडिया में पढ़ने का मौका मिला मुझे, तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो है उसमें पढ़ने का मौका मिला, लेकिन वीज़ा के वजह से मुझे वहाँ ज़्यादा दिन रुकना मुमकिन ना था। फिर भी वहाँ 2 साल आना जाना पड़ा, और आया, वीज़ा मिला तो गया, पढ़ने के बाद फिर वापस आ गया। इसी तरह के 2 साल मैं लखनऊ में गुजारा। और यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम है, पहले तो ढाका यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स करना पड़ा, 4 साल का होता है। इस वक्त 4 साल का, मैं जब पढ़ता था उस वक्त 3 साल का था बीए ऑनर्स। इसके बाद एमए 1 साल का है। इसके बाद एमफिल भी किया। एमफिल के बाद एमफिल इकबाल की शायरी पर था, इकबाल की शायरी में शख्सियत जो है इस उन्वान पर था। इसके बाद पीएचडी किया। पीएचडी में आलिमों के किरदार, उर्दू अदब में आलिमों के किरदार पर खिदमत पर मैं पीएचडी किया। ये मेरा इल्मी सफ़र है। इसके अलावा मैं कौमी मदरसा में, देवबंदी मदरसा जो कहते हैं, उसमें मैं दौरा हदीस किया, इफ्ता भी किया, अदब भी पढ़ा, सब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बानी साहब, ये हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप की मादरी ज़बान बांग्ला है, लेकिन उर्दू की मोहब्बत आपके दिलो दिमाग में बाकी होने की वजह से आपने जो है उर्दू की में ही जो है एमफिल, पीएचडी, और इसमें आप फिर प्रोफेसर भी हो गए। बहुत बड़ी बात है कि मादरी ज़बान और वहाँ उस बांग्लादेश की ज़बान, जिस तरह से आपने फरमाया कि बांग्ला है, लेकिन आपने उर्दू की मोहब्बत का इजहार उर्दू सीख के और उर्दू में आगे तालीमी असनाद हासिल की, और इसके अलावा आपने बाज़ाब्ता उर्दू को पेशे के तौर पर भी लिया, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा काम मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे आपके ऐसे मज़ामीन हैं तो बड़े अहम मौज़ूआत पर आपने लिखे हैं, रसाइल में छपे हैं, और आपकी बांग्ला ज़बान में 9 किताबें मंजर आम पर आ गई हैं। और उर्दू में जो आपकी किताब है जो बहुत अहम है, ख़ास तौर से बांग्ला ज़बान जानने वाले जो है तालिबात जो वहाँ हैं उनके लिए या अमूमी हैसियत से सबके लिए वो किताब बड़ी मुफीद है। आज की उर्दू उसका नाम है। तो आपने एक बड़ा बहुत बुनियादी और अच्छा काम किया है। हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़हीम अख्तर साहब लंदन से, और
प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब जुड़ गए हैं, और इसके अलावा और भी दोस्त अहबाब जुड़ते चले जा रहे हैं इंशाल्लाह, और बड़ी दिलचस्पी से आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है इस हवाले से कि यानी पहले आपने मुफ्ती और आलमियत का कोर्स किया, या पहले आपने उर्दू में एमए और पीएचडी किया, कि ये बाद में हुआ या पहले हुआ? थोड़ा इसकी वजाहत चाहूँगा मैं। मेरी तालीम की बुनियाद तो है कौमी मदरसा। मैं कौमी मदरसा ही पढ़ा, और उसमें जो उर्दू सीखना पड़ा वहाँ से ही मैं उर्दू सीखा। वो उसमें दौरा हदीस करने के बाद हम आलिम जो है यहाँ HSC लेवल के इम्तिहान होता है, तो इंटर लेवल के उस इम्तिहान के बाद ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा। तो ढाका यूनिवर्सिटी में अब सुन के हैरान हो गए कि ढाका यूनिवर्सिटी में जो तालिब इल्म दाखिला लेते हैं उनके 100% स्टूडेंट के मादरी ज़बान बांग्ला है, ढाका यूनिवर्सिटी में जो दाखिला लेते हैं। तो मेरे मादरी ज़बान भी बांग्ला था। मैं ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद वो इफ्ता करने का मौका मिला। ये दोनों एक साथ चला, ढाका यूनिवर्सिटी और इफ्ता का कोर्स एक ही साथ चला। और आप सुन के और भी हैरान हो गए कि मैं जब ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा था, उसी वक्त मैं नौदुआ में भी पढ़ रहा था। मैंने वहाँ मैं दाखिला नौदुआ के स्टूडेंट हूँ। फिर यहाँ बांग्लादेश आया और दाखिला इम्तिहान चल रहा था, तो दाखिला इम्तिहान दिया। फिर नौदुआ जाने के बाद वहाँ कोर्स कंप्लीट किया। फिर ढाका आ गए। ढाका आने के बाद ढाका यूनिवर्सिटी में बी ऑनर्स किया और MA MPhil सब किया। तो ये आपका सवाल का खुलासा ये है, मैं पहले मदरसा में पढ़ा, यही मेरे इल्म की बुनियाद है और उर्दू की बुनियाद वही है। फिर ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तो डॉक्टर साहब, आपसे आपको जो है हमारे इकबाल साहब देख रहे हैं, और भी कुछ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला बहरहाल जारी रहेगा इंशाल्लाह। आपको अल्लामा इकबाल की शायरी और उर्दू अफसाने से भी आपका जो है एक ज़हनी लगाव है, आपकी दिलचस्पी के ये मौज़ूआत है, और मिर्ज़ा गालिब के खतूत को बिलखसूस आपने इनका मुताला किया है, और गालिब के खतूत के हवाले से आपके मज़ाहिर हैं। और बिलखसूस बांग्लादेश में जो उर्दू अदब है, तो उर्दू में आपने बांग्लादेश में उर्दू की सूरत हाल के बारे में भी बहुत ज़ाहिर है, आपके मकालात छपे हैं इधर उधर बहुत सारे अच्छे रसाइल व जराइद में। मैं ये चाहूँ कि अल्लामा इकबाल की शायरी से आप किस हद तक मुतासिर हैं, और अल्लामा इकबाल की शायरी के आपकी शख्सियत पर और आपकी इल्मी अदबी शख्सियत पर क्या असरात पड़े हैं? आप इकबाल से किस कदर मुतासिर हैं? थोड़ा इस बारे में वजाहत कीजिए, हमारे नाजरीन को इस बारे में वाकफियत हासिल आपके हवाले से। माइक ऑन कीजिए, माइक को ऑन कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए। हाँ हाँ। मैं इकबाल को बहुत पसंद करता हूँ। इकबाल की शायरी मुझ पर बहुत असर डाला है। मैं जब MA की स्टूडेंट मैं MA जब कर रहा था, तो उस वक़्त बहुत दिल में कुछ सदमा था, लेकिन मैं जब इकबाल को पढ़ता था तो वो दिल ठीक हो जाता था। तो जहन में जो परेशानी था वो दूर हो जाता था। तो वो इस कदर होता था। और ये जो इकबाल की शायरी है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे खुद पूछे बता तेरी रिजा क्या है। ये सिर्फ इसको मैं 2 लाइन में ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि मैं इसको अपने में अपनाया, और मैं ऐसा कोशिश किया कि अपने को इस तरह के बुलंद करो कि जो भी हो, जो भी होना चाहिए, मैं जो चाहूँ वही अल्लाह दे दे। हकीकत में यही होता है, मैं जो चाहता हूँ वही अल्लाह दे देता है। इसको जो खुद ही को बुलंद कर इतना, इसे खुद ही से बहुत सारे लोग बहुत मतलब देते हैं, पर्सनैलिटी के कोई मुराद लेते हैं, लेकिन एक मुराद ये भी है ताल्लुक माल्ला, खुद ही से मुराद ताल्लुक माल्ला।
اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے تاکہ اللہ جب میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو اللہ خود پوچھ لے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. تو یہ اقبال کے شاعری میں تو اسلامیت بھی ہے، اور اقبال کے شاعری میں جو مسلمانوں کے ترقی کے لیے بہت وہ شاعری کی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے. ربانی صاحب کے ہمارے ناظرین میں سے پھول خان صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ بنگلہ دیش میں اردو سے نفرت کی کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ اردو سے وہاں نفرت کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے بھی فرمایا، اور سوال بھی آیا ہمارے ناظرین میں سے، ہمارے پھول خان صاحب پوچھ رہے ہیں سوال کہ اردو سے محبت کے بجائے وہاں کے لوگوں کو اردو سے نفرت کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کا سوال تو میں سن لیا. دراصل اردو کے بارے میں جو نفرت ہے یہ لوگوں کے، بنگلہ دیشی لوگوں کے نہیں، یہ سیاسی بنا پر ہے. سیاسی آدمی اس کو نفرت ڈال دیا. تو سیاست کی وجہ سے آپ بھی اردو کو لے کر بہت سیاست ہوتا ہے کہ اردو کیوں یہاں ہے، ڈھاکہ یونیورسٹی میں کیوں اردو ہے، اور یہ ڈھاکہ یونیورسٹی اور راشٹریہ یونیورسٹی دو یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے. 1921 سال جب ڈھاکہ یونیورسٹی قائم ہوا، اسی وقت سے شعبہ اردو ہے. تو اس وقت بھی سیاسی والوں نے یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں اردو کیوں ابھی زندہ ہے یہاں. تو 1952 میں جب ہمارے یہاں تحریک ہوئی، اس کے پہلے اس کا بنیاد تھا پاکستان والے کہہ رہے تھے کہ صرف اردو ہی یہاں کے قومی زبان ہوگی. تو بنگلہ والا جو ہے، اکثریت بنگلہ زبان جن لوگوں کے مادری زبان بنگلہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بنگلہ زبان کو بھی قومی زبان قرار دیجیے. جب وہ لوگ اس میں راضی نہیں ہوا تو عداوت شروع ہو گئی، اردو اور بنگلہ میں عداوت شروع ہو گئی. تو بنگلہ والے چاہتے ہیں کہ میں بنگلہ ہاں بنگلہ ہی چلے گا، اردو نہیں چلے گا. اردو والے کہہ رہے تھے کہ یہاں اردو ہی چلے گے، بنگلہ نہیں چلے گے. اس کی وجہ سے یہاں مخالفت شروع ہو گئی تھی، نفرت. اس کے بعد جو سیاست والوں ہیں نفرت ڈالنا چاہا تو نفرت ڈالتے رہے. خصوصاً 1971 کے بعد جب بنگلہ دیش ہوا تو بنگلہ دیش ہونے کے لیے جن وجوہ کو قرار دیا تھا، ان میں ایک ہے 1952 میں وہ تحریک لسان کی وجہ سے بنگلہ دیش ہوا. وہ سیاسی والے سب لوگ یہی کہتے ہیں. یہ ربانی صاحب آپ کی گفتگو سے ایک نئی بات بھی یہ سامنے آئی. ہمارے پروفیسر حمید اللہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے آخر شب کے ہم سفر، اس کا پس منظر جو ہے یعنی بنگلہ دیش کے پس منظر میں وہ آخر شب کے ہم سفر جو ہے ناول لکھا گیا ہے. تو بہت معلوماتی بات سامنے آئی. ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اگر اجازت یہ بتائیے جی، ایک سوال مجھے میرے نظر میں گزری تو وہ اسکرین میں دیکھا. تو یہاں ہم کس طرح کے پڑھاتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ہم کس طرح کے پڑھاتے ہیں؟ تو پہلے سن لیجئے، یہاں داخلہ لیتے ہیں ہر سال 120 اسٹوڈنٹ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بی آنرس کے لیے. 4 سال کے ہیں بی آنرس، اور 4 سال اور ایم اے 1 سال. اس 5 سال کے اسٹوڈنٹ کے تقریباً وہ 400 سے زیادہ ہو گئے اسٹوڈنٹ. تو وہ جب داخلہ لیتے ہیں ان کی مادری زبان بنگلہ ہونے کی وجہ سے اس کی اردو حرف بھی نہیں آتی. یہاں تک کہ ہمارے یہاں ہندو طلبہ بھی داخلہ لیتے ہیں، تو ہندو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تو اردو حرف کبھی نہیں دیکھا.
मुस्लिम जो है वो तो कुरान के हरफ को देखा, लेकिन हिंदू वाले तो कभी उर्दू हरफ नहीं देखा। उन लोगों को हम पहले 5 रोज में एक फाउंडेशन कोर्स कराता हूँ। तो फाउंडेशन कोर्स में क्या करता हूँ, फाउंडेशन कोर्स में अलिफ बे ते से शुरू करके उसको 5 दिन में ऐसा कर देता हूँ कि वो उर्दू लिख सकते हैं ना, उसको देखने के बगैर। तो देख नहीं, तो देख तो बच्चे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जब कोई लफ्ज कहूँ तो वो लिख सकेंगे, 5 दिन बाद वो कर सकते हैं। और ये कोई मैं कहूँ कि ये पढ़ो तो वो भी पढ़ सकते हैं 5 दिन के बाद। मुझे ये अल्लाह मालूम किस तरह वो सीख लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत जो दाखिला लेते हैं ढाका यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह बहुत ज़हीन स्टूडेंट होते हैं, इसलिए शायद सीख लेते हैं, अल्लाह की तरफ से मदद भी होते हैं। तो 5 दिन के बाद वो उर्दू रीडिंग कुछ तो पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम कोशिश करते हैं, पहला सेमेस्टर जो होता है हमारे यहाँ सेमेस्टर एक 6 महीने का सेमेस्टर होता है। पहले सेमेस्टर में हम कोशिश करते हैं सिर्फ उर्दू जबान सिखाने के लिए। जो जितने सारे टीचर है, उस्ताद है, सब उर्दू सिखाते हैं। उर्दू सिखाने के बाद वो 6 महीना बाद ऐसा माशाल्लाह लोगों को मलका हो जाता है, वो उर्दू पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम तो कोशिश करते हैं कि उर्दू अदब को पढ़ाने के लिए हम यहाँ उर्दू नज़म पढ़ाते हैं, उर्दू अफसाना पढ़ाते हैं, मज़ामीन पढ़ाते हैं। तो तारीख़ अदब उर्दू भी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, दास्तान भी है। और बहुत जो स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑनर्स और मास्टर्स के कोर्स जो जिस स्टैंडर्ड में होना चाहिए उस स्टैंडर्ड में हमारे सिलेबस है, और इस सिलेबस को हम फॉलो करते हैं। और पढ़ाने वक्त हम जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उर्दू टेक्स्ट है, उसी को हम पढ़ाते हैं, बांग्ला से नहीं पढ़ाते। और लेकिन लेक्चर देने के वक्त बांग्ला और उर्दू दोनों को मिलजुल कर हम उनको लेक्चर देते हैं ताकि वो आसानी से समझ सके और उसको अपना सके। ये बताइए कि आपके बांग्लादेश के अंदर, खासतौर यूनिवर्सिटी के अंदर, उर्दू के शोबे में कितने तलबा ऐसे हैं जो एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या एमए कर रहे हैं, या कर चुके हैं? उनका क्या है डाटा आपके पास? कितने लोग ऐसे हैं जो मैं एमफिल पीएचडी कर चुके हैं? दरअसल हमारे यहाँ बीए ऑनर्स का कोर्स है 4 साल, और इसके बाद एमए, इसके बाद एमफिल और पीएचडी। पीएचडी की तादाद ज़्यादा नहीं, क्या होगा 20, 25, 30, 25 ही होगा जो आदमी जो उर्दू में पीएचडी किया है। एमफिल भी इसी तरह के होगा, बल्कि उसके कम होगा, 10-15 होगा जो एमफिल किया है बांग्लादेश से। लेकिन एमए और बीए ऑनर्स इसकी तादाद इस वक्त मैं कहूँगा 2000 तो होगा, बल्कि उससे ज़्यादा होगा। अच्छा, तो असातिज़ा कितने हैं आपके शोबे में जो उर्दू से वाबिस्ता है, जो उर्दू की दर्स व तदरीस से जुड़े हुए हैं? हाँ, शोबा उर्दू में टोटल 9 असातिज़ा है। वो उर्दू सिखाते हैं ऑनर्स और मास्टर्स के लिए, एमफिल और पीएचडी वो भी करते हैं। माशाअल्लाह, तो बहुत अच्छा है। मतलब आप अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जब एक सवाल मेरे सामने है, एक सवाल मेरे सामने है, बांग्लादेश में नफरत, उर्दू के बारे में नफरत। हाँ, नफरत पहला तो 71 के बाद बहुत नफरत थी। इस वक्त जो 1980 के बाद नफरत कम होने लगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जो 2020 साल में हम कह रहे हैं, तो उर्दू के बारे में कुछ सियासी नफरत तो है, लेकिन लोगों में उर्दू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नफरत नहीं है। और गोया उर्दू के लिए मोहब्बत है वहाँ के लोगों। हाँ, उर्दू के लिए मोहब्बत है। जब हम कोई नौकरी के लिए किसी बोर्ड के सामने हाजिर होते हैं, तब देखते हैं वहाँ जो बोर्ड में बैठे हुए हैं वो लोग जब सुनते हैं कि उर्दू के स्टूडेंट हैं, तो उर्दू के स्टूडेंट अक्सर लोग खुश होते हैं, और वो
कि यादें जिक्र करना शुरू करते हैं कि मैं वो हाँ पाकिस्तान उर्दू पढ़ा सीखा और हमारे कोर्स में उर्दू था, ये ठीक है, तुम बताओ, तो उर्दू के बारे में कुछ बताओ। तो ये इसी तरह के नौकरी के जो बोर्ड होता है उसमें एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी बोर्ड होता है, नौकरी के जो बोर्ड होता है उसमें उर्दू सुनकर नफरत से कहते हैं उर्दू पढ़ा, उर्दू अच्छा, तो वो दिल को टूटा देते हैं जी। देखिए, ऐसा है रबानी साहब, आप जाती तौर पर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारे नाजरीन भी ये पूछना मुनासिब समझ रहे होंगे कि आपके अज़ाइम क्या हैं उर्दू की खिदमत के ताईं, आपके क्या अज़ाइम हैं, आप क्या कुछ करना चाहते हैं उर्दू के लिए वहाँ? मैं सोचता हूँ कि यहाँ उर्दू स्टूडेंट जो है वो ये पहले सुन लीजिए, यहाँ उर्दू जो स्टूडेंट दाखिला लेते हैं, क्या उर्दू की मोहब्बत में उर्दू में दाखिला लेते हैं? शायद पाकिस्तान में भी उर्दू की मोहब्बत में दाखिला नहीं लेते, शायद पाकिस्तान में भी उर्दू की मोहब्बत में उर्दू में दाखिला नहीं लेते। स्टूडेंट चाहते हैं वो अंग्रेजी में पढ़े, वो ये इकोनॉमिक्स में पढ़े, वो लॉ में पढ़े, वो बहुत आला तबका जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें पढ़ने चाहते हैं। जो जिन लोगों के यहाँ लिस्ट होता है, इसका लिस्ट में जो पीछे पड़ जाते हैं उसके बारी आते हैं उर्दू पढ़ने के लिए, वो मजबूरन उर्दू पढ़ते हैं। बांग्लादेश में भी यही है, दूसरे जगह में भी शायद यही होता है कि उर्दू मजबूरन पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो दाखिला लेते हैं उनकी मादरी ज़बान क्योंकि उर्दू नहीं होती है, उस उर्दू के बारे में कुछ मोहब्बत भी नहीं होती, तो फिर वो जब उर्दू पढ़ने आता है तो उनके जहन में रहता है कि उर्दू क्यों पढ़ो, उर्दू पढ़ो इसलिए BA ऑनर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और BA ऑनर्स के सर्टिफिकेट से एक नौकरी मिल जाएगा, इसलिए वो ढाका यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए BA ऑनर्स पढ़ने के लिए पढ़ते, उर्दू के नहीं पढ़ते। तो वो उनके जहन में चूंकि होता है कि नौकरी करना है, तो उनको कोशिश करता हूँ ठीक है तुम नौकरी के लिए कोशिश करो। फिर भी हमारे यहाँ उर्दू रेडियो है, रेडियो था इस वक्त, कुछ दिन पहले उसको बंद कर दिया, लेकिन बहुत सारे वक्त से उर्दू रेडियो था यहाँ। तो उर्दू से कुछ तो जो उर्दू ड्रामे हैं, उर्दू ड्रामा को यहाँ बांग्ला में ट्रांसलेट करते हैं, डबिंग होता है, तो उसमें स्टूडेंट बहुत काम करते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं तो पहले चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट जो उर्दू में दाखिला लिया है उसके उर्दू पढ़ना अच्छा हो, अच्छे तरीके से पढ़ सके और उसको समझ सके, उसके तर्जमा या ट्रांसलेशन जो करना है ट्रांसलेशन कर सके, ये चाहता हूँ पहले स्टूडेंट के बारे में। और जो उर्दू काम यहाँ हुआ है उसको काम को मैं सपोर्ट करता हूँ। रबानी साहब, यहाँ के जो शायर है, रबानी साहब आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मोहम्मद शाहिद अहमद असवी साहब, इरफान आरिफ साहब जो तहरीक बकाए उर्दू के सदर हैं, और हमीदुल्लाह खान साहब, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम, जुनेद हुसैन साहब जो है आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, मोहम्मद इकबाल साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और आपकी कोशिशों को सराह रहे हैं कि आप बांग्लादेश में, कि जहां की सरकारी ज़बान बांग्ला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हतुल मकदूर कोशिश कर रहे हैं उर्दू के फ़रोग के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की बका के लिए। तो आपको खुशामदीद कह रहे हैं, आपको जो है सराह रहे हैं आपकी कोशिशों को। इरशाद शफीक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद महफूज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फहीम अख्तर साहब का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ, बड़े मुहिब्बान उर्दू में शामिल। अताउल्लाह खान साहब हमारे साथ शुक्रिया कह रहे हैं और आपको इस्तेमाल कर रहे हैं आपका।
اور آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. تو تجندر سنگھ راول صاحب جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ پونا سے. آپ اندازہ کیجئے کہ اردو واقعی ایک سیکولر زبان ہے، یہ ایک طبقے کی زبان نہیں ہے. اس میں ہندوؤں کا، مسلمانوں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، جینوں کا، بدھوں کا، سب کا جو ہے برابر کا کنٹریبیوشن ہے، برابر کی حصہ داری ہے. اس لیے اردو نہ صرف ایک زبان ہے بلکہ ایک تہذیب کا نام بھی ہے. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہوئے آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بنگلہ زبان میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ ان کا کوئی ٹرانسلیشن بھی اردو میں کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ ہاں، جو کتابیں لکھی ہیں اردو کے ریلیٹڈ جو کتاب ہے وہ اس کو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں، خصوصاً جو یہ ہے اردو সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান, اردو সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান. ہاں، یہ اس کا جو عنوان ہے، یہ کچھ کافی ضخیم کتاب مجھے نظر آ رہی ہے. ہاں ہاں ہاں، بہت 400 سے زیادہ ضخیم ہے. اردو ادب میں مشہور علماء کرام کی خدمت 1957 سے 1947 تک یہ کتاب ہے. اجے مالوی صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ہاں، اس میں میں یونس ڈار صاحب مبارکباد. علی اشرف جی جی، علامہ شبلی نعمانی، اس میں علامہ شبلی نعمانی، علی اشرف صبوحی، ابوالکلام آزاد، عبدالحلیم شرار، الطف حسین حالی، اشرف علی تھانوی، اسماعیل میرٹھی، خواجہ حسن نظامی، شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد، حسین احمد، علامہ راشد الخیری، سید سلیمان ندوی، اس طرح کے 18 علماء کرام جو ہے وہ جن لوگوں نے ادب پر کام کیا ہے، ان لوگوں کے ادب کے کام کو یہاں جمع کرنے کی کوشش کیا. جی، اس ماشاءاللہ آپ کی بہت بڑی محنت ہے یہ. ہاں، اس کتاب اگر اردو میں ٹرانسلیشن ہونے کے بعد میں سمجھوں گا کہ وہ بہت سارے لوگ اس کو قبول کرے گا، اور اس میں جو مواد جو ہے وہ اس میں انفارمیشن جو ہے وہ بہت اعلیٰ طبقے کی میں دینے کی کوشش کیا، اور بہت چھان بین کر کے. میں یہاں میرے استاد کے نام لینا چاہتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ میرے استاد تھے. تو وہ مجھے تحقیق کس طرح کے کرنا ہوتا ہے وہ سکھائیں. تحقیق وہ کہا کہ 2-4 صفحہ، 5 صفحہ یا 10 صفحہ پڑھنے کے بعد صرف ایک لائن، ایک سطر لکھنے کے موقع ملتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ تو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھ کر لکھ لیتے ہیں، نقل کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا نہیں آتا ہے. میں پڑھتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں، پڑھنے کے بعد پھر جو اس کا خلاصہ مجھے آتا ہے اور چھان بین کے بعد پھر لکھتا ہوں. اس کتاب جو ہے، اس کتاب میں ایسے ہی کیا، بہت چھان بین کے بعد اس میں لکھ. کوئی معلوم یہ ہوا کہ آپ تحقیقی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں. ہاں، ہم وقت میں تحقیقی اصول کو نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہوں. میں ایسا بات کبھی نہیں کرتا ہوں جو ٹھیک نہیں ہے، جو ربانی صاحب ایک سوال ذہن میں میرے آ رہا ہے کہ تحقیق میں معتبر اور غیر معتبر حوالوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا اس بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو. یہ معتبر اور غیر معتبر حوالے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہاں ریسرچ میتھڈولوجی جو ہے اس کا کورس بھی میں پڑھاتا ہوں. تحقیق کے بارے میں جو کورس ہیں یہاں ماسٹرز میں ہیں. تو یہاں ایک اس کو ایک واقعہ کہوں گا کہ باہر سے ایک لوگ آیا جو مسلمان نہیں ہے. وہ آ کر وہ تحقیق کرنا چاہا کہ وہ مسلمان کیا کرتے ہیں. تو اللہ کی مرضی وہ قادیانی کے چل گئے. وہ وہاں سونا کے ہیں، یہی کرتے ہیں. تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایسے ہی صحیح کرتا ہے. تو معتبر
وہ تحقیق سورس میں وہ کام کرتے تو کبھی وہ قادیانی کے پاس نہیں جاتے، بلکہ جو اسلام کے اصل اسلام ہے، محمد اسلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے اسلام، اسی کو وہ اپناتے اور وہ اس سے سیکھتے، جانتے کہ کیا اسلام کیا ہے۔ تو تحقیق کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی ایک گائیڈ سپروائزر کے ماتحت تحقیق کرنا پڑے گا، کیونکہ تحقیق کرتے وقت بھی ایسا کہ آپ کون سی کتاب سے حوالہ لے رہے ہیں، وہ کہہ سکیں گے یہ معتبر ہے یا نہیں معتبر ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارا وقت نہیں سمجھتے ہیں، تو گائیڈ جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو اچھے جانتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایک کتاب سے لو، اس کتاب سے نہیں لو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارے تحریک بقائے اردو کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ڈھاکہ میں اردو ادب اور نظام تعلیم۔ بہت ساری باتیں تو اس بارے میں سامنے آ بھی گئی ہیں آپ کی زبانی، لیکن مزید یہ بتائیے کہ ڈھاکہ میں اردو ادب کا اور نظام تعلیم کی کیا صورتحال ہے؟ ڈھاکہ میں یعنی بنگلہ دیش میں صرف دو یونیورسٹی میں شعبہ اردو ہے، ایک راجشاہی یونیورسٹی میں اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں، دو جگہ میں، اور کہیں بھی اردو شعبہ اردو نہیں ہے۔ پہلے تو تھا پاکستانی زمانہ میں تو تھا، بہت سارے کالج میں شعبہ اردو تھا، اور بنگلہ دیش ہونے کے بعد بھی تھا، لیکن 10-15 سال بعد کے اس میں شعبہ اردو کو ہٹا دیا گیا، کالج سے شعبہ اردو کو ہٹا دیا گیا۔ اور پاکستان دور میں وہ مدرسہ پرائمری اسکول میں، ہائی اسکول میں وہ اردو تھا، لیکن 1971 کے بعد جب بنگلہ دیش ہوا تو وہاں ہائی اسکول میں کہیں بھی اردو نہیں تھا، پرائمری میں بھی نہیں اردو تھا، لیکن مدرسہ میں اردو ہے، مدرسہ میں اردو تھا، لیکن میں کہوں گا اس وقت کچھ کم ہو رہا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا، میری تعلیم جب ہو رہی تھی تو اس وقت میں پہلے ہی کہا کہ اردو کا پرچہ امتحان جو ہے، امتحان دینا ہے تو عربی سے دینا ہوگا یا اردو سے، بنگلہ نہیں چلے گا۔ مدرسے میں یہی حال تھا، لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ سارے کے سارے اکثر لوگ اسٹوڈنٹ بنگلہ میں امتحان دیتے ہیں، پرچہ بنگلہ میں لکھتے ہیں۔ تو اردو ایک وقت تھا مدرسہ میں لازمی تھا، لیکن اس وقت لازمی نہیں ہے۔ فارسی میں جب مدرسہ میں پڑھتا تھا تو اس وقت فارسی تھا، اب فارسی ٹوٹلی نہیں ہے، کوئی مدرسہ میں فارسی ہے، اردو بھی جاتا رہا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں صرف 2 یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے، اور کچھ جو جن لوگوں کی مادری زبان اردو ہے وہ ہم یہاں مختصراً بہاری کہتے ہیں، ان لوگوں کو جو اسکول ہوتے ہیں، اسکول میں کچھ اردو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بتائیے غلام ربانی صاحب کہ اردو اور بنگلہ کا کوئی لسانی رشتہ آپس میں آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی بنگلہ زبان اور اردو، اس کا کچھ رشتہ جڑ رہا ہے؟ کوئی آپس میں کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں آپس میں جو آپ 2 منٹ میں آپ کو سکھا دوں گا۔ جو بنگالی ہے وہ اس کو میں کس طرح کے جو 5 دن کا کلاس جو ہوتا ہے، 5 دن کا جس میں فاؤنڈیشن اردو سکھاتا ہوں، اسی کلاس میں میں پہلا روز اس طرح کے سکھاتا ہوں کہ دیکھیے بنگلہ اردو ایک ہی زبان ہے، ایک قسم کی زبان ہے، اور اس میں تم 1 منٹ میں 20 جملہ سیکھ سکو گے۔ کس طرح؟ تو دیکھو میں یعنی آمی، بنگلہ میں آمی، اس کو اردو میں میں، تو میں کے ساتھ ہوں ہوتا ہے، میں ہوں آئی ایم، تو اس کے ساتھ تو میں ہوں تم جب لو تو جب لیتے ہیں تلفظ کرتے جب یاد ہو جاتے ہیں میں ہوں، تو اس کے بعد میں سکھاتا ہوں کہ میں بنگلہ دیشی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں طالب علم ہوں، بس اس طرح کے جملہ سیکھ لیتے ہیں۔
इसके बाद मैं कहता हूँ कि देखो जो लड़का है वो मैं ता हूँ कहेगा, मैं ता हूँ, मैं ता हूँ, तुम याद कर लो, वो याद कर लेते हैं। और लड़की जो है वो कहेगी मैं ती हूँ, मैं ती हूँ, मैं ती हूँ। आज की उर्दू में आप देखेंगे तो वो मैं ता हूँ और मैं ती हूँ सीख लेते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ कि चलो हम देखते हैं बांग्ला के साथ क्या मिलजुल है। बांग्ला अल्फाज जो है उसमें आकर हम कहते हैं, जो हिंदी समझते हैं शायद समझेंगे आकर, इसको हम आकर छोड़ देंगे। चला, 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 इन्हें चलना। उर्दू में जो चलना कहते हैं हम बांग्ला में कहते हैं चला। तो चला के आकर को हम डिलीट कर दे। आकर छूट देने के बाद क्या होता है? चल। तो लो, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। देखा, देखना जो है उसको बांग्ला में देखा कहते हैं। तो देखा के आकर को छोड़ दो, क्या होता है? देख, मैं देखता हूं। सुना, इसके बांग्ला में सुना कहते हैं। तो उसको आकर को डिलीट कर दो, क्या होता है? सुन, मैं सुनता हूं। पढ़ा, इसको बांग्ला में पढ़ा कहते हैं। पढ़ना, पढ़ना को बांग्ला में पढ़ा करते हैं। तो पढ़ा, इसका आकर को छोड़ दो, पढ़, मैं पढ़ता हूं। लेखा, लेखना, लेखना को इसको बांग्ला में लेखा कहते हैं। तो लेखा के आकर को छोड़ दो, लेख, मैं लेखता हूं। इस तरह के 20 जुमला 1-2 मिनट में उन लोगों को सिखा देते हो। वो पहले रोज जिन लोगों की मादरी जबान बांग्ला है, जो कभी नहीं उर्दू नहीं सीखा, लेकिन वो उसी क्लास में कह सकता है मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खेलता हूँ। इस तरह के वो कह सकते हैं। माशाल्लाह, ये आपकी दुआओं से ये मेरा जो सिस्टम अल्लाह की मदद अल्लाह ने मुझे दिया है, इससे वो स्टूडेंट बहुत जल्दी उर्दू सीख लेते हैं। आपकी कोशिशें काबिल तारीफ हैं, काबिल सताइश हैं, और अल्लाह करे कि आप अपने सफ़र पर इसी तरह रवां दवा रहें। उर्दू सफ़र पर, उर्दू की मोहब्बत में आप जो है उर्दू की खिदमत वहाँ कर रहे हैं। बहुत बड़े एक ऐसे माहौल में उर्दू की खिदमत करने वाले आप एक ऐसे उर्दू के खैर ख्वाह और उर्दू के सिपाही हैं, जो उर्दू के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करें कि उर्दू को फ़रोग मिले, उर्दू आम हो, उर्दू लोग सीखें, उर्दू पढ़ें, उर्दू बोलें। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ढाका यूनिवर्सिटी से ये जर्नल है, ढाका यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ उर्दू, ये हम शाया करने की कोशिश कर रहे हैं। हम शाया करते हैं उर्दू में। बांग्लादेश से उर्दू में एक ही जर्नल सिर्फ यही शाया होता है, ढाका यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ उर्दू। हम कुछ दिन पहले ये एक कॉन्फ्रेंस किया है, उर्दू लिटरेचर इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में उर्दू अदब पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है उर्दू पर। इसमें बहुत अच्छा, इसमें हाँ, इसमें 11 मुल्क के आदमी आए थे, स्कॉलर्स आए थे, प्रोफेसर आए थे और मुहब्बिन उर्दू आए थे। जो फाहिम साहब जो है वो पहले मुबारकबाद देता हूँ, वो तो मुझे सुन रहा है, तो वो भी आए थे। सूफिया शीरीन अभी वो कह रहे हैं, वो है, उसको मैं देखा जी। सूफिया शीरीन भी आप हमारे साथ जुड़ी हुई है और आपको खुशामदीद कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो स्क्रीन में देख लिया, वो 11 मुल्क के आए थे। मिस्र से वाला जो है वो आए थे, और जर्मनी से सरवार गाजली साहब आए थे, कनाडा से हुदा साहब आए थे। तो बहुत सारे आदमी आए थे। यहाँ बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ था। वाह, आपने दिल खुश कर दिया ये डॉक्यूमेंट दिखा के, मुझे ये दस्तावेज दिखा के, और हैरत भी हो गई कि कम से कम आप जो है अपनी सतह पे इतना बड़ा काम कर चुके हैं, और जो शायद अभी हम नहीं कर पाए हैं, और जो आपके हाथों हुआ है, तो ये आपकी मेहनत, आपकी जुस्तजू, आपकी कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों को आप जारी रखिएगा इंशाअल्लाह। आदमी कोशिश के बगैर और कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह की मदद आएगी तो बहुत कुछ हो सकेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा।
जिन नाज़रीन एक चीज जिन नाज़रीन देख रहे हैं, 21वीं सदी में जो उर्दू अदब के जो हमारे कॉन्फ्रेंस में जो आर्टिकल पढ़ा है, वो इंशाल्लाह इसमें शाया होने वाला है, वो काम चल रहा है इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बांग्लादेश में उर्दू अदब के बारे में कुछ तो बात होना ही चाहिए। बांग्लादेश में उर्दू अदब एक वक़्त तो था, वो पाकिस्तान से, इंडिया के, बिहार से, यूपी से बहुत सारे आदमी बांग्लादेश में आए थे, नौकरी करते थे और मुशायरा करते थे, वो लिखते थे उर्दू में। उर्दू से यहाँ से कुछ रिसाला भी शाया होता था, और क्या कहते हैं, डेली पेपर भी यहाँ से शाया होता था। तो एक वक्त तो था, लेकिन इस वक्त 1971 के बाद यहाँ उर्दू कोई काम नहीं हुआ था। 80 के लगभग इस वक्त से कुछ काम शुरू हुआ। तो इस वक्त बहुत सारे किताबें शाया होने वाला है। मेरे पास एक है अरमान शमसी को मैं आपको दिखाऊंगा, ये उनकी तस्वीर है अरमान शमसी। उनके जी 9 किताब शाया हुआ है, जो उर्दू में लिखा है अफसाना पर। रेशम का जाल जो है वो है। तो आशनाई का कार्ड वो उनका पहला है। आशनाई का कार्ड पहला उसका किरदार है, जो अफसाना पर, उर्दू अफसाना पर ख्वाब रेजे है। तो चांद नगर, जी पियासी नदियाँ, परछाए, क्या बात, ये 9 अफसाना की मुजमुआ अरमान शमसी के शाये हुआ है। बांग्लादेश में बैठकर वो लिख रहे हैं। और ये हम शमीन ज़वानवी एक शायर है, बहुत अच्छे लिखते हैं, उनकी शायरी को मैं पसंद करता हूँ। शमीन ज़वानवी। अहमद इलियास है यहाँ के, बांग्लादेश में एक शायर है, अभी जिंदा है, बहुत उम्र हो गई, संदसीदा हो गया है, फिर भी वो लिखते रहे हैं। बांग्लादेश में उर्दू अदब पर उनकी एक किताब है। और ये जलाल अजीम आबादी है, कहकशा उसकी किताब का नाम है। और सिनमीम साजिद है, जो उर्दू अफसाना अभी लिख रहे हैं। कुछ तो है, अभी बाकी है जो उर्दू में। शायरी के हवाले से कितने लोग ऐसे आपकी नजर में हैं जो बड़े मोतबर शायर हैं बांग्लादेश के अंदर, जो कमाल की शायरी कर रहे हैं, या कम से कम शायरी कर रहे हैं? हाँ, मैं कहूँ कम से कम शायरी कर रहे हैं। इसको मैं गणना चाहूँ तो तादाद में वो इस वक्त जो मौजूद है, हयात में है, उनके तादाद शायद 30-40 होगा। शायरी कर रहे हैं बांग्लादेश में, इसकी तादाद 30-40 होगा जो बाहयात है। तो उसमें तो शमीन ज़वानी के मैं नाम लिया। ये आपके साथ शायद कुछ दिन पहले सलाम हमीदी जोड़े थे, देखा मैं बाकाया उर्दू में। सलाम हमीदी वो सैयदपुर से है, अशरफुल हक बाबू है सैयदपुर से, और ये खुलना से भी कुछ आदमी है, और जलाल अजीम आबादी, साबिर हुसैन साबिर है, अभी जिंदा है। वला जमाल साहिबा जुड़ी हैं हमारे साथ, आपको खुशामदीद भी कह रही हैं, और कह रही हैं कि कमेंट किया है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रब्बानी साहब बांग्लादेश में। और तजेंद्र सिंह जी भी आपको जो है आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ रहते हुए, बांग्ला आपकी मादरी जबान है, माहौल बहुत उर्दू का है, लेकिन इसके बावजूद आपकी तड़प, आपकी ललक, आपके जज्बात, आपकी मोहब्बत जो उर्दू के तई है आपके दिल के अंदर, वो जो है उर्दू वालों के लिए एक मिसाली नमूने की हैसियत रखती है। तो आखिर में इस एक चीज मैं पूछना चाहूंगा रब्बानी साहब आपसे कि शायरों में आपको जो है, किस शायर से ज्यादा आप मुतासर हैं? असरी जो हमारी शायरी है, मौजूदा दौर की जो शायरी है, मौजूदा दौर की शायर से बहुत ज्यादा मुतासर हैं आप?
جو اس وقت شاعری کر رہے ہیں اردو میں؟ دراصل میں کو زیادہ نہیں اپنایا. شاعری مجھے نہیں آتا ہے, شاعری سمجھتا بھی نہیں. اقبال کو تو میں پڑھا, لیکن نیا دور کے جو ہے شاعری بہت کم سنتا ہوں. پھر بھی مشاعرہ جو ہے بنگلہ دیش میں مشاعرہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ اردو کے روح ہے مشاعرہ, اردو کے روح ہے مشاعرہ. جی. تو تو گویا مشاعروں ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں ہے. ہاں, میں اسی بارے میں کہہ رہا ہوں. ڈھاکہ میں پہلے تو وہ جو بہاری اردو والے جو ہے وہ ہی مشاعرہ کرتے تھے. ان کے جو علاقہ ہے اسی علاقہ میں چاہا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کو ان لوگوں کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے پاس لے آؤ, تاکہ وہ مشاعرہ کس طرح کے ہوتے ہیں دیکھ لے اور سن لے. تو 2014 میں انٹرنیشنل مشاعرہ ہم کیا ڈھاکہ یونیورسٹی میں 2014 میں. اس کے بعد 2019 میں بھی مشاعرہ کیا. تو مشاعرے میں نیشنل مشاعرہ کیا, اس میں بنگلہ دیش کی مختلف جگہ سے بہت سارے شاعر آئے تھے. سب کے سب جو جن لوگوں کے نام بتایا, سید پور ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے, اس سے 10 شاعر آئے تھے صرف سید پور سے. ڈھاکہ سے کافی لوگ تھے, اور مختلف زبان کے شاعروں کو بھی ہم بلائے تھے, وہ کہا تھا. اسی وقت مجھے ایک بات یاد آئی. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جو اس وقت جڑے ہیں, میری زبان مادری زبان بنگلہ ہے, اردو نہیں ہے. اس لیے میرے زبان میں جو کہہ رہا ہوں, میں سوچتا ہوں بہت سارے غلطیاں ہو رہا ہے, پھر بھی سن لے. تو میرے جو لڑکا ہے 1919 میں جو مشاعرہ ہوا, میرے لڑکا 9 سال کا لڑکا, وہ اس میں اردو میں شاعری پیش کیا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات. ہاں, اس کے گھر میں تو اردو ہی نہیں بلکہ ہم بنگلہ ہم آپ کہتے ہیں. پھر بھی وہ کوشش کیا اردو میں لکھنے کے لیے. تو اس میں بہت سارے مشاعرہ 2019 میں ڈھاکہ میں, 2020 میں جب ہم انٹرنیشنل کانفرنس کر رہے تھے, اس میں بھی ایک مشاعرہ سیشن رکھا. تو اس میں جو 11 ملک کے آدمی آئے تھے, سب مل جل کے شاعری کیا. اس کے علاوہ کچھ دن پہلے جموں سے ایک ڈین آئے تھے, جو صاحب عنایت مالک صاحب. تو وہ آئے تھے, ان کو لے کر ہم ایک جگہ گئے تھے, وہاں ہم مشاعرہ بنایا. تو شاعر کی شاعری پیش کی. تو اردو ڈھاکہ جو ہے اس میں میں اس کو دینے کے لیے کوشش کرتا ہوں. اور اردو ڈھاکہ کے علاوہ جو اردو ڈھاکہ کے نام سے میں ایک یوٹیوب چینل بھی کھلا ہوں, تاکہ یہ مشاعرہ اور شاعری جو ہے وہ اس کے پرچر ہو, اس کے ہم یہاں سے نشر کر سکے. اور ایک بات میں کہوں کہ میں یہاں کیا کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں کوشش کر رہا ہوں. میرے استاد جو ہے ڈاکٹر سلمہ تھی, اور یہ ڈاکٹر کانیز باتل تھی. ان لوگوں کی مادری زبان اردو تھی. تو وہ تو اردو میں ان کی کتاب لکھا. تو میں کوشش کر رہا ہوں اس وقت ان لوگوں کی ان کی کتابیں شائع کرنے کے لیے. ساہتیہ گویشنا کیندرا نام کے میرا ایک ادارہ ہے. اس کی طرف سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو شائع کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک شاعرہ ہے جہانارا بیگم. میں کوشش کر رہا ہوں ان کی جو شاعری ہے اس کو شائع کرنے کے لیے. وہ بھی کمپوز ہو گیا, اور یہ کنیز بتول کے جو تھیسس ہے اس کا بھی کمپوز ہو گیا. انشاءاللہ کچھ دن میں شائع ہو جائے. چلیے, بہت اچھا لگا. اچھا, اب جو ہے ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے. ربانی صاحب, آپ اردو کی نئی نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے, کیا کرنا چاہیے؟ تو میں انڈیا میں تو بہت سارے وقت سفر کرتا ہوں. اس میں دیکھتا ہوں کہ
इंडिया में भी उर्दू की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि नए नस्ल जो है वो चाहते हैं कि उर्दू को जो मैं कहा था कि वहाँ यह उर्दू पर मजबूरन पढ़ते हैं, तो नए नस्ल वाले उर्दू को सीखते हैं, मजबूरन सीखते हैं, उसको पढ़ने के लिए वो उर्दू की वो नहीं चाहते, तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, इसमें तरक्की समझते हैं। तो मैं नए नस्ल को कहूँगा कि उर्दू एक ऐसी जबान है, मोहब्बत की जबान कहते हैं, मैं सुना बहुत सारे जगह मोहब्बत की जबान। उर्दू में मोहब्बत जिस तरह हम पेश कर सीखते हैं, मैं तो इसे कहूँगा कि उर्दू ढाका में जो मेरा आईडी है, इसमें कभी कुछ बारे में देता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे शेयर हो जाते हैं कि वो उर्दू को बहुत मोहब्बत करते हैं। तो नए नस्ल को मैं कहूँगा कि उर्दू को मोहब्बत करे, मादरी जबान जो है, मादरी जबान को मोहब्बत करे। मैं बंगाली हूँ, मादरी जबान बांग्ला है, मैं बांग्ला करने में वक्त यह जब आपके पास है तो उर्दू में बात कर रहा हूँ, गलती हो रहा है फिर भी उर्दू से बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जब लाइफ खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं बांग्ला ही से मैं बात करूँगा। और अब जब स्टूडेंट के साथ बात करता हूँ बांग्ला ही से करता हूँ, जब घर में बात करता तो नए नस्ल को कहूँगा कि आप, मैं जिस तरह मेरी मादरी जबान बांग्ला को अपनाया और बांग्ला को पसंद करता हूँ, हम वक्त बांग्ला से बातचीत करता हूँ, आप भी जिन लोगों की मादरी जबान उर्दू है, आप भी उर्दू को अपनाइए, उर्दू सीखें, उर्दू से बोल चाल के जो जबान है आप उर्दू को बनाए। और जब कोई टेक्स्ट करना हो, किसी के पास मैसेज भेजना हो तो उर्दू में भेजे, उर्दू हर्फ से भेजे, हर्फ तहजीद जो है तो उससे भेजे। ऐसा नहीं करे जो हम बांग्लिश कहते हैं, बांग्ला को अंग्रेजी हर्फ में हम लिखते हैं कोई। इसी तरह उर्दू वाले भी उर्दू जबान को अंग्रेजी हर्फ में लिखते हैं, तो इस तरह ना करे, जब लिखते हैं लिखे उर्दू लिखे। और उर्दू को सिर को ऊंचा करने की जबान समझे, उर्दू पढ़ते वक्त सिर ना झुकाए, यही मैं कहना चाहता हूँ अगले नस्लों को। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने, और खुदा करे कि उर्दू की नस्ल इन तमाम बातों को ज़हन और दिल में रखे और अमल पैरा हो इन तमाम आपके खूबसूरत मुफीद मशवरे नाज़रीन, वक्त जो है अब इख्तिताम को पहुंचता। आज हमारे मेहमान थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब। इनका ताल्लुक जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि ढाका बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी के शोबा में प्रोफेसर की हैसियत से काम करते हैं, और इनकी ज़बानी आपने इनकी उर्दू की ताई मोहब्बत और कारकर्दगी और उर्दू के लिए क्या कुछ इक़दाम ये कर रहे हैं, और उर्दू के बारे में इन्होंने जो कुछ फरमाया, जो कुछ बताया, या जो कुछ मशवरे दिए उर्दू वालों को, नई जनरेशन को, नई नस्ल को, ज़रूरत है कि मुफीद बातें सुनने से ज़्यादा उनको अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि अगर हम अमल नहीं करते अच्छी बात पे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं रब्बानी साहब आपका ज़ाती तौर पर और फिर तहरीक बकाए उर्दू के अराकीन की जानिब से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पे आप आए और अपने ज़र्री ख़यालात से उर्दू की मोहब्बत के तय अपने जज्बात, एहसासात और तजर्बात और वहाँ के उर्दू के लिए जो माहौल आप तैयार कर रहे हैं उस के लिए मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ नईम अनीस साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी जाते जाते, और वो भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, हमें देख रहे हैं। मैं नाजरीन आज के इस प्रोग्राम मैं भी बाकाया उर्दू वाले सबके शुक्रगुजार हूँ। मैं एक छोटा सा एक आदमी हूँ,
اردو کے لیے کام تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن محبت رکھتا ہوں، تو مجھے بلایا ہے، اس میں دعوت دیا ہے اور میرے بات سنی ہے آپ لوگ، تو میں آپ لوگوں کے سب لوگوں کے شکر گزار ہوں۔ جی تو ناظرین، بہرحال یہ پروگرام آج یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل پھر پورے 5 بجے ہم پھر تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر آپ کے روبرو ہوں گے کسی ایک نئے مہمان کو لے کر۔ چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کی نظر ڈاکٹر بشیر بدر کا یہ شعر کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ خدا حافظ۔